Good morning, students. How are you? I hope you all are great and fine. So, and welcome to our class today. And as you know that you can see on the board, it's written letter. And we all know that letter writing comes in the composition section. ठीक है, letter writing किसमें आती है? Letter writing composition section में आती है of the English part. Now, when we talk of composition, actually what a composition is? Composition क्या होती है? When you write something, when you compose something, that is composing a poem, composing a essay, composing a article, composing a story. So कुछ भी written part होता है ना, that we call as composition. उसे हम क्या बुलाते हैं? Composition बुलाते हैं. Now compositions can be short compositions, compositions can be long compositions, and compositions can be very long compositions. Now when we come to the short compositions, जैसे कि notice है, poster है, advertisements है, all these come in which category? Short compositions. Now when we move to the long compositions में क्या होते हैं? Like letter writing, ठीक है? That comprises the long composition section. And when we move to the very long ones, तो उसमें ज्यादा word limit वाली चीजें आ जाती है, जो कि कौन सी होती है? The articles, the speech writing and the debate writing, that is whether you write in the for of the motion or against the motion. तो ये सारा क्या है? composition का part है. Now when you are writing a composition, to make your composition good, there are few things that you should keep in your mind. Okay, composition जब भी आप करते हो तो आपको उसको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, तो उसको हम एक टिप्स के उसके अंदर कैटेगरी में लेते हैं. Tips to what? Tips to have an effective composition. Tips to have an effective composition. तो क्या composition के क्या टिप्स हो सकते हैं? पहला जो एक टिप है वो है write in proper formats. Whenever you do a composition section में एक नोटिस से लेकर के एक लेटर तक हर चीज का अपना एक फॉर्मेट होता है. So when you are doing a composition section, you have to write it in a proper format. अगर आपने उसमें से फॉर्मेट के मार्क्स चीज निकाल दी ना, तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलते. लाइक हम स्टार्ट करते हैं हमारी शॉर्ट कंपोजिशन नोटिस. अब नोटिस राइटिंग में इफ यू हैवंट मेड द बॉक्स, अगर आपने बॉक्स ही नहीं बनाया, योर फॉर्मेट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट. एंड होपफुली जहां तक हो सकेगा दैट नोटिस विल बी रिटन एज इलेजिबल and it will not be checked and it will give you how many marks? It will give you 0 marks. Why? Because the first basic thing that is to make the box, जो कि किसका पार्ट है? The format that you haven't made. So अगर आपको किसी चीज का फर्स्ट स्टेप नहीं आता, how can we just see to it कि आपने बाकी चीज सही लिखी है कि नहीं? हमारे लिए तो वो चीज यहीं पे it's wrong. अगर पूरा नहीं भी जाएगा तो एटलीस्ट द मार्क्स विल बी डिडक्टेड. ओके, नाउ द सेकेंड थिंग जो आपकी आती है, नो ग्रामेटिकल errors. You have to see that there should be no grammatical errors. Grammatical errors नहीं होने चाहिए. If there will be grammatical errors, आपके वहां से marks deduct होंगे and definitely होंगे. Even we can say that a full stop and comma and semicolon जो होता है ना, inverted commas हुए, the marks of those things are also deducted when very commonly or very naturally you say ना, मैंने तो इतने अच्छे अच्छे points लिखे थे, still पता नहीं मेरे marks कहाँ से काट दिए. I think that ma'am likes me or dislikes me, or ma'am likes someone else more than me. तो कुछ partiality का issue होगा. No, that's not a partiality issue. It's a grammatical issue. Because full stop and comma, वो हमें लगता है it's not a very big thing. वो बहुत बड़ी चीज नहीं लगती. But when it comes to your marks ना, तो ये छोटा सा full stop जो होता है ना, this can also let you down in your scores because इसके error के भी marks चले जाते हैं. Now the third very important thing जो आपको देखना है वो ये है, use stylish vocabulary.
यूजिंग स्टाइलिश वोकैबुलरी मीन्स आपको बहुत सिंपल वोकैबुलरी यूज नहीं करनी है. नाउ यू आर इन क्लास विच, यू नो आप कौन सी क्लास में हो? नाउ यू आर इन क्लास 12, दैट इज स्कूल लेवल का द सीनियर मोस्ट क्लास. एंड व्हेन यू आर यूजिंग वेरी सिंपल वर्ड्स, बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स यूज करोगे तो वो तो कौन यूज कर लेता है? दैट इज बीइंग यूज्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th 5th 6th. अब आप 12th में आ गए हो, यू हैव टू यूज अ वोकैबुलरी दैट इज वेरी सिंपल. आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करना है, आउट ऑफ द वे जाके कुछ यूज नहीं करना, बट द थिंग शुड बी स्टाइलिश. सिंपल वोकैबुलरी को यूज नहीं करना. मेक योर वोकैबुलरी स्टाइलिश. लाइक आप किसी को अगर लेजी लिख रहे हो कि कोई पर्सन है वो काम नहीं करता, जी चुराता, आप उसको लेजी लिखना चाह रहे हो. लेजी तो छोटा सा बच्चा भी लिखता है. राइट अ न्यू वर्ड फॉर दैट. जैसे कि आप क्या लिखोगे? आप उसके लिए शैमर लिख सकते हो. तो शैमर इज बेसिकली वो एक ऐसा वर्ड आ गया जो क्लास 12th के लिए अच्छा लगेगा. ठीक है. नाउ व्हेन आप किसी चीज को डिलीशियस लिखते हो, कोई चीज को छोटा बच्चा है वो टेस्टी लिखता है, उसके बाद जो बड़े बच्चे होते हैं उसको डिलीशियस लिखते हैं. आप उसको क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट स्क्रम्पशियस. आप उसको स्क्रम्पशियस बोल सकते हो. दैट वेरी टेस्टी. दैट इज वी कैन जस्ट से कि वो होता है ना कि इतना टेस्टी खाना कि हमें मोर एंड मोर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो इतना टेस्टी, दैट इज नोन एज स्क्रम्पशियस. सो यू हैव टू यूज अ स्टाइलिश वोकैबुलरी. वोकैबुलरी आपको कैसी यूज करनी है? स्टाइलिश. नाउ नेक्स्ट है लॉजिकली in coherence with the topic. चीज बहुत ही लॉजिकली आपके टॉपिक से कोहेरेंस में होनी चाहिए. कोहेरेंस मींस इन रिलेशन टू द टॉपिक. दैट डज नॉट मीन कि आपने एक सेंटेंस ईस्ट का लिख दिया, दूसरा वेस्ट का लिख दिया, तीसरा नॉर्थ का लिख दिया, देन आपने साउथ का लिख दिया. नो, आपको कैसे लिखना है उसको? लॉजिकली ऐसा लिखना है दैट वन सेंटेंस इज ऑटोमेटिकली लिंक्ड विद व्हाट? इट्स लिंक्ड विद द अदर सेंटेंस. एक सेंटेंस किससे लिंक हो जाएगा? दूसरे से लिंक हो जाएगा. ठीक है. अपने आप ऐसा होना चाहिए कि जब आप पढ़ रहे हो ना आपको लग रहा है द थिंग इज गोइंग ऑन. ऐसा नहीं लगना चाहिए अच्छा ये चीज तो यहाँ खत्म हो गई, फिर नेक्स्ट कुछ आएगा, फिर नेक्स्ट कुछ आएगा. नहीं, वो चीजें क्या होनी चाहिए? आपने एक सेंटेंस पढ़ा, जब सेकंड पढ़ो ना तो ऑटोमेटिकली वो पहले से रिलेट हो जाए, आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़े. दैट शुड गेट रिलेटेड टू द फर्स्ट वन. तो वो क्या है? लॉजिकली इन कोहेरेंस विद द टॉपिक. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलो the word limit. Okay, follow the word limit. word limit को follow करना है. word limit अगर follow नहीं की ना, this can also cost you your marks. कोई चीज, if I gave you a piece of composition to be written in 150 to 200 words, you all know that one line comprises how many words? 10 words. 10 words की क्या होती है? एक लाइन. So if I say that write in 150 words, that means you have to write in 15 lines. Now if you make 15 का अगर आपने 13 किया, 14 किया, it's okay, accepted. But if you give it 9, 10, 11 lines, then obviously that you have cut short the word limit. So I am going to cut short your marks. Then next is कि अगर हमने आपको 150 का लिमिट दिया है, and if you do 160, 165, 170, it's expected and accepted both. And but होता क्या है? If you take it to 190, 200, then obviously that you have exceeded the word limit, and then I am not going to exceed your marks. Then I am going to again cut short your marks because आपने word limit को follow नहीं किया. So these are the few tips जो आपको एक effective composition के लिए चाहिए. That is, you have to write in proper format. जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक के फॉर्मेट से उसके अकॉर्डिंग लिखोगे. देयर शुड बी नो ग्रामेटिकल एरर्स. ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, कोशिश करो कम से कम हो. दैट ओनली कैन बी डन बाय रीडिंग एंड राइटिंग. रेगुलर रीडिंग करो, रेगुलर राइटिंग करते रहो, आपके धीरे धीरे एरर्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे. Then you have to use a stylish vocabulary. That is, now you are a grown up child, now you are from the, we can say, the senior most standard of school level, that is class 12. And now when if you use a simple vocabulary, it does not impress the person who is reading your composition section. So you have to use a stylish vocabulary. Regularly make it a habit. आप 3-4 words जो है उसका vocabulary आप start करो, उसका collection शुरू करो.
Logically in coherence with the topic. Logically it's what? It's coherent with the topic. आपके टॉपिक के साथ में क्या है? In coherence. ठीक है? That is जो भी आप चीजें लिख रहे हो, it should be related to a topic in one or the other way. Then you have to follow the word limit. अगर आपकी चीज word limit में होगी और इन सब चीजों को फॉलो करते हुए लिखोगे, definitely your piece of writing is going to be very impressive as well as very interesting. And if the thing is impressive and interesting, it's but obvious that you are going to score very well. Okay, so if these tips are clear to you, so now we can move on to the format of the letters, that which is the actual topic for today. But the thing is कि आप खाना बनाने किचन में घुस गए हो एंड आपको किचन के बेसिक्स ही नहीं पता, तो will you be able to, आपको रेसिपी आती है बट आपको किचन से रिलेटेड कुछ रूल्स नहीं पता, will you be able to work perfectly? No. So there are some things that you should follow so that the thing, the outcome जो भी होता है, it should be in a perfect form. So now if we are going to yes, so now we are talking of letter writing, correct? So जब हम letter writing की बात कर रहे हैं, so इस letter के there are two parts of the letter. Okay, many of you must have been knowing because we have all, हम इसको 6th 4th 5th 6th class onwards करते आते हैं. But the thing is junior classes में क्या होता है कि whenever you do something ना, आप जब भी कुछ करते हो, letters करते हो, कुछ करते हो, junior classes में you have 1 2 3 letters and that ही particularly आपको learn करना होता है. But when you come to reach to the senior classes, then you have to learn the formats by heart. Format आ जाए उसके बाद में you should be able to understand the language English. तो आपको कोई भी question दे, you can write the answer. Now, when we talk of letter writing, there are two kinds of letter. One is a formal letter and the other is the informal letter. Okay, the one is the formal letter and the other is the informal letter. ठीक है, दो टाइप के लेटर्स है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. नाउ जो हमारा फॉर्मल लेटर है उसमें कौन कौन से लेटर्स आते हैं आपको पता है? फॉर्मल आप समझते हो व्हाट एक्चुअली इज फॉर्मल? फॉर्मल किसको बोला जाता है? जहां पे फॉर्मेलिटी होती है. फॉर्मल वर्ड कहाँ से? फॉर्मेलिटी और फॉर्मल इज द सेम वर्ड, वो एक में से ही निकल गया दूसरा वर्ड. ठीक है, फॉर्मेलिटी, जहां पे फॉर्मेलिटी होती है. फ्रेंड्स के साथ फॉर्मेलिटी होती है? नहीं होती. टीचर्स के साथ होती है? यस ऑब्वियसली होती है. आपको अगर किसी टीचर से परमिशन लेनी है तो व्हाट यू से? मे आई कम इन, मे आई गो आउट, मे आई टेक दिस, मे आई टेक दैट. यहीं पे अगर फ्रेंड होता है तो आप बोलते हैं कैन यू गिव मी दिस, कैन यू गिव मी दैट, कैन आई टेक दिस, कैन आई टेक दैट. तो मे और कैन में भी क्या है? फॉर्मल परमिशन एंड इनफॉर्मल परमिशन. तो जहां पे फॉर्मेलिटी नहीं होती वो होती है इनफॉर्मल प्लेसेस और जहां फॉर्मेलिटी होती है वो होती है फॉर्मल प्लेसेस. एंड फॉर्मेलिटीज कहाँ होती है? क्या फ्रेंड्स के साथ फॉर्मेलिटी होती है? नो. क्या पेरेंट्स के साथ फॉर्मेलिटी होती है? नो. ग्रैंड पेरेंट्स के साथ फॉर्मेलिटी होती है? नो. रिलेटिव्स के साथ फॉर्मेलिटी होती है? नो. किसके साथ फॉर्मेलिटीज होती है? क्या ऑफिशियल चीजों में फॉर्मेलिटी होती है? यस. बिजनेस में होती है? यस. इफ आई से आस्क यू टू राइट अ लेटर टू द एडिटर, क्या आप उसमें हाय हेलो हाउ आर यू लिखोगे? नहीं, यू विल बी कंप्लीटली फॉर्मल व्हाइल राइटिंग टू हिम. देन आपके स्कूल एप्लीकेशंस और टू द प्रिंसिपल, लेटर टू द प्रिंसिपल और एनीथिंग लाइक दिस. तो ये जो चीजें हैं, दीज कंप्लेंट लेटर्स, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हो तो वो क्या हो जाएंगे? दैट विल बी द फॉर्मल वंस. तो जहां पे अगर हिंदी में इफ आई से दिस, तो जहां फॉर्मेलिटी है मतलब औपचारिकता है, तो जो औपचारिक पत्र होते हैं ना वो क्या होते हैं? फॉर्मल लेटर. और जहां फॉर्मेलिटी नहीं है मतलब अनौपचारिकता, तो जहां पे अनौपचारिक पत्र होते हैं वो होते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर्स. तो सी, जहां फॉर्मल लेटर्स की बात कर रहे हैं हमारे कौन से आएंगे? बिजनेस लेटर्स. ठीक है, बिजनेस लेटर्स. सेकंड, अदर ऑफिशियल लेटर्स, अदर ऑफिशियल लेटर्स. देन उसके बाद में जो हमारा थर्ड आता है, थर्ड में हम क्या लेंगे? एडिटर लेटर्स. ठीक है, एडिटर को लेटर्स. एंड उसके बाद में आ जाएंगे आपके कंप्लेंट लेटर्स.
ठीक है, तो ये देखो, अगर आप कोई भी बिजनेस लेटर लिख रहे हो तो वो आपका फॉर्मल में आएगा. इफ यू आर राइटिंग अदर ऑफिशियल लेटर्स तो वो भी उसमें आएंगे, लेटर टू द एडिटर एंड कंप्लेंट लेटर्स. नाउ लाइक बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर्स कैन बी आपके ऑर्गेनाइजेशंस को जो आप लेटर लिखते हो. अदरवाइज आपने समटाइम्स ऐसा एक लेटर देखे होंगे जिसमें आपने किसी बुक स्टोर को कुछ ऑर्डर दिया किसी चीज के लिए, और कोई स्पोर्ट्स हाउस को आपने कुछ चीजें मंगवाने का ऑर्डर दिया, राइट. आपने कोई ऑर्डर प्लेस किए या आपने ऑर्डर कैंसिल किए, ऑर्डर्स रिटर्न किए, तो वो सारे कहीं ना कहीं आपके बिजनेस अदर ऑफिशियल लेटर्स में आ जाते हैं. जॉब एप्लीकेशन लेटर वो सारा आपका ऑफिशियल लेटर में आ जाएगा. तो ये जो चीजें होती है, दीज कम इन योर बिजनेस लेटर्स, अदर ऑफिशियल लेटर्स, एडिटोरियल एंड कंप्लेंट लेटर्स. और ध्यान रखो, इनमें कभी भी हम डियर, हाय, हेलो, इनफॉर्मल वर्ड्स को यूज नहीं करते. नाउ जब हम बात कर रहे हैं इसकी, जिसको हम बोलते हैं द इनफॉर्मल लेटर्स, दे आर वेरी सिंपल, जहां पे बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी नहीं है. दैट इज फैमिली, फैमिली का कोई भी मेंबर हो, ठीक है. इंडिविजुअली इफ आई सी, तो पेरेंट्स, सिबलिंग्स, दैट इज योर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है. देन कम्स द कजिन्स, देन कम्स द फ्रेंड्स, ठीक है. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम अदर रिलेटिव्स, ठीक है. अब फैमिली में आपके कौन आ गए, ग्रैंड पेरेंट्स भी इसी में ही आ गए, ग्रैंड. ओके, तो जहां पे हम इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं, देयर कम्स द फैमिली, देयर कम्स द पेरेंट्स, देयर कम द सिबलिंग्स, द कजिन्स, द फ्रेंड्स एंड द रिलेटिव्स, ठीक है. फैमिली दैट इज योर ग्रैंड पेरेंट, एवरीवन इन द फैमिली. किसी को भी लिख रहे हो, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कजिन्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखते हो तो सीधा हाय हेलो करके, समटाइम्स तो आप ये भी नहीं पूछते हो हाउ आर यू, आई एम फाइन, सीधा, क्योंकि फ्रेंड है, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है, उसको तो मैं कैसे भी अपनी कोई भी बात शेयर कर सकता हूँ. तो हम उस तरीके से उनके साथ में बिल्कुल इनफॉर्मल रहते हैं. तो व्हेन वी टॉक ऑफ लेटर, वी हैव टू काइंड्स ऑफ लेटर, that one is the formal and the second is informal. When it comes to formal, so it's business letter, it's official letters, editorial letters and the complaint letters. And when we talk of informal, it's the family, that is grandparents and the other family members, parents, siblings, that is brother and sister, siblings, you know, brother and sister, okay. Then comes the cousins, the friends and the relatives. So these two things are in the formal and informal. Okay? Chalo. Yes, students. So I hope these things, both the things are clear to you. And now you just go through it. थोड़ा सा देखो इसको, take up the examples, check करो whatever books you have. You can check an example of all the letters and just keep it in your mind that what the format is exactly like. सिर्फ आपको ये देखना है एक बार, so that tomorrow when we do the formats, there will be many things that will already be clear to you. तो आप बोलोगे कि yes ma'am, it's absolutely true and we knew this beforehand, because हमने कल इंट्रोडक्शन के बाद में we have just taken up the examples on our own and हमने बहुत से लेटर्स में बहुत से फॉर्मेट्स चेक कर लिए. So we can say that this is all for the class with the tips how to make your composition effective and impressive. And then we have taken the topic that is letter, and from the letter formal and informal, and what is a formal letter and what are the types of formal letter, what is the informal letter and what are the types of informal letter. That has been completed by us in today's class, and in tomorrow's class we are going to do the formats of both the letters and we'll take a few examples to understand it more clearly. Till then, just take care of yourself, okay, and see you soon tomorrow, and stay safe and just keep studying hard.